360 और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सीएनबीसी में हमसे एक एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि गोल्ड सिल्वर ड्यूटी कट और जीएसटी, एफटीए और रफ डायमंड इंपोर्ट जैसे मुद्दों पर बात की। इन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं जीजेसी के पूर्व चेयरमैन नितिन खंडेलवाल, अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी एंड लाइमलाइट लैब डायमंड ग्रोन डायमंड्स की एमडी एंड फाउंडर पूजा शेठ माधवन। लेकिन सबसे पहले गोल्ड सिल्वर के इंपोर्ट पर ड्यूटी कट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Issue about gold and silver rates needing to come down. I think over a period of time, subsequent budgets, one after the other, kept on increasing gold and silver and platinum import duty rates to an extent where it became almost irrational. In a way, the incentive not to pay that duty, and you know what I mean by that, became very high. Probably just flying down to Dubai and coming back. It worked very well if you even took a piece of jewelry and brought it to India. And this was certainly hurting the interests of Indian industry, hurting job creation, hurting the very vibrant sector which we had developed over the years. I won't say just developed, we had nursed over the years. This is a sector which has grown from thousands of years through the sheer hard work and very, very high level of intricate craftsmanship that we have seen. We have seen coming out from Indian artisans. And therefore, it was felt that it's best that we bring it to a very, very reasonable level and make it affordable for the Indian consumers. शादी ब्याह का मौसम आ रहा है, अभी वापस त्योहारों का दिन आ रहे हैं, शादी ब्याह के दिन आ रहे हैं, तो मंगलसूत्र भी सस्ता हो हमारे बहनों के लिए और आपके ट्रेड को, आपके इंडस्ट्री को भी एक गति मिले, तेज उत्साह से हम आगे बढ़ सकें। तो छोटा मोटा टिंकरिंग करते 15 था ना, शायद 15 से 14, 12, 10, तो डेल्टा would have still remained very high, which would have not put an end to any wrong practices. So the idea was make it affordable, ensure that it's no more viable to look at any alternate means to bring gold. Everything comes through official channels. Ensure that the industry gets a leg up, particularly when discretionary spending in large parts of the developed world is down. I think the Indian domestic market has really outshone and is growing rapidly. आइए अब आपको ये भी सुनवाते हैं कि सोने चांदी पर जीएसटी के मुद्दे पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हमसे क्या कहा। कौन सी पिक्चर का डायलॉग है वो, अनिल कपूर का, बी पॉजिटिव, है ना? कौन सा है? वेलकम, बी पॉजिटिव। यार आप लोग, ये सेक्टर जिंदगी भर रोता रहा है, जरा कभी तो खुशियां भी मनाओ यार। जब उनको खुशियां मिल रही हैं उनको लग रहा है ऐसा नहीं हो इसके पीछे कुछ और आ रहा हो। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, सोचने लायक। This is not an idea. मैं अभी तक तो सोचा नहीं था, पर अभी मैं जाके विचार करूंगा निर्मला जी के साथ। एंड पहले देश एफटीए उन देशों से करता था या जो वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते थे या फिर भारत की ही तरह विकासशील होते थे, लेकिन अब ये विकसित देशों के साथ किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सीएनबीसी आवाज़ से इस बातचीत में कहा कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि देश की इंडस्ट्री का कारोबार विदेशों में बढ़े, उन्हें सुविधाएं मिले। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। ये तो ongoing process है. Many discussions are happening with different countries, with different group of countries. There's never a deadline to these FTAs. The FTAs evolve over a period of time and can only be concluded once we have a fair and equitable and a balanced trading arrangement between the two parties. India today negotiates from a position of strength. Gone are the days where we were desperate for FTAs. Gone are the days where we made FTAs only with less developed countries or countries who are
in the same development cycle as India. Today we are making FTAs also with developed countries. Today we are looking at expanding your opportunities in countries where they have high per capita incomes, high GDP values, and can actually spend money for Indian goods and services. फाइनली रूस से रफ हीरों के इंपोर्ट पर G7 देशों ने रोक लगा रखी है। इस पर सरकार की क्या नीति है, क्या बातचीत है, आइए ये भी सुनवाते हैं आपको। The G7 ban on Russian diamonds is a reality. I think many of us from the GJEPC has also been actively involved with the government in talking and negotiating to the G7 group of countries. Dr. Jaishankar, Rajiv Chandrasekhar and I, three of us also had extensive meetings both at the European Union and with the Belgian Prime Minister to work out an amicable solution. The industry is aware that the Modi government has been actively pursuing with the G7 leaders, heads of state. I have been actively pursuing with the trade ministers of the G7 countries. Very recently in Italy, we had the G7 group of trade ministers meeting. There also I had extensive discussions with all my counterparts, including the European Union Trade Commissioner Valdis Dombrovskis. And we have not only lodged a strong protest on the effort to move all the diamond checking to Antwerp, but have also successfully managed to get certain concessions. I think they've accepted grandfathering now. They have started the payments of all the old stuck-up consignments. They have deferred the implementation by 6-8 months until March of next year. I'm continuing to work actively with them to see whether we can have a center in India, whether Mumbai or Surat could have a center where the same thing that they want to do in Antwerp can be done. ऑल राइट, तो ऑफकोर्स काफ़ी बुलिश स्टेटमेंट्स वहाँ पर आती हुई। ड्यूटी कट का फ़ायदा भारत को मिले, इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स दोनों को। जीएसटी नहीं लगने वाली है और साथ ही साथ एफटीएज बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ किए जाएंगे और जो ऑन्टवर्प में जिस तरह की फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर मुंबई और सूरत में भी मुहैया कराई जाएंगी। तो ऑफकोर्स इंडस्ट्री के सपोर्ट में काफ़ी कुछ यहाँ पर आया। नितिन जी, आपका फर्स्ट रिएक्शन इन सब पर, बिकॉज हमने डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस भी आप यहाँ पर आता हुआ देखा है, तो काफ़ी चीज़ें जो अटकी हुई थी, पेंडिंग थी, यहाँ पर हमने निकलते हुए देखी हैं। इन सब के मद्देनज़र अब आप कैसे देखते हैं इंडस्ट्री को? आपकी क्या सेंस है अब फेस्टिवल्स के आने पर आते आते में किस तरह की सेल्स, क्या नंबर्स यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे? मैं पीयूष गोयल जी के एक एक वर्ड से सहमति अपनी दर्शाता हूं और पिछले 10 साल से जो हमारी डिमांड रही, जब मैं ऑल इंडिया चेयरमैन था तो हमने जीएसटी के लिए स्पेशल स्लैब बनाया था, लेकिन उस समय एक चीज की अंदर से ये भी थी कि 1% का जीएसटी 3% हो गया, भले हमारे लिए स्पेशल स्लैब बनाया है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले आने वाले किसी भी मीटिंग के अंदर हमारी जीएसटी भी कम हो जाए और ड्यूटी कम करने से जो फायदा मिला इंडस्ट्री को वो आप देख ही रहे हैं। जिस ढंग से इंपोर्ट हुआ है, जिस ढंग से एग्जीबिशन में भीड़ लगी है और रिटेल के अंदर तो ग्राहकों की भीड़ काफी सारी उमड़ पड़ी है और सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट हो रहा है वो एनआरआई कस्टमर को हो रहा है। अभी चेन स्टोर के साथ मेरी मीटिंग थी मुंबई के अंदर, सब लोगों के साथ सबने बताया कि हमारा दुबई का बिजनेस 25% से कम हो गया और इंडिया का बिजनेस 25% से बढ़ गया है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव मूव है सरकार का। हम ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी पास्ट चेयरमैन एज ए जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल में इसका बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। नितिन जी, आने वाले समय में अब इस सीजन में किस तरह की सेल्स की एक्सपेक्टेशन है? नंबर्स क्या देखते हैं? मैं तो अभी देख रहा हूं कि अभी इतने नंबर चल रहे हैं। अगर मैं मंथ और मंथ अगर देखूंगा तो आफ्टर बजट अभी 20 से 22% ग्रोथ है हमारे सेल में ग्राम के अंदर, और अगर रुपीज टर्म में देखूं तो 35% के आसपास में ग्रोथ है। और अभी सारे लोगों की क्या हो गया, अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है ड्यू टू सोशल मीडिया। तो ये जो जियो पॉलिटिकल कंसर्न चल रहा है, जो अमेरिका के मिसाइल का चल रहा है, दुबई के अंदर कई रिफाइनरी को बैन कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के आगे पीएमएलए के अंडर में करीब 32 रिफाइनरीज को बैन कर दिया गया है। तो ये सारा देखते हुए मुझे लगता है कि मार्केट बहुत बुलिश रहेगा और ग्राहकी तो अभी से दिख रही कि बहुत ज्यादा है। तो हम तो बहुत एंटीसिपेट कर रहे हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं आने वाले सीजन के। और मैं सीएनबीसी के सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ड्यूटी कट का एडवांटेज अभी आप लोगों को जो मिल रहा है
कभी ये लड़ाई एक्सकेलेट हो गई तो ये एडवांटेज पूरा निकल जाएगा। जो 70,000 के पास का गोल्ड है फिर से 75,000 हो जाएगा। ये बढ़ने से पहले उसका फायदा ले ले और अभी अपने आने वाले समय की पूरी बुकिंग कर ले। राइट। तो ऑफ कोर्स वो एक यहाँ पर बात है कि एब्सोल्युटली जिस तरह के प्राइसेस हमने फिलहाल बनते हुए देखे हैं, ड्यूटी कट है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट है, उसका पूरा फायदा एज ऑफ नाउ यहाँ पर कंज्यूमर्स ले सकते हैं। ईशू जी, आप कैसे डील कर रहे हैं इन सब चीज़ों से? और जैसे नितिन जी कह रहे हैं कि फुल तैयारी है, यहाँ पर सीजन का इंतजार है। बिल्कुल। तो अगर आपको याद हो, बजट के दूसरे तीसरे दिन हमने बात की थी और मैंने बताया कि एक ही कंज्यूमर ने आके इतना सामान लिया। तो एग्जैक्टली द सेम सेंटिमेंट्स, अबाउट 30 से 35% का ऑलरेडी हम लोग बेनिफिट देख रहे हैं और डायमंड ज्वेलरी में भी बेनिफिट देख रहे हैं। एक्चुअली क्या हो जाता है कि कंज्यूमर साइकोलॉजी भी हो जाती है। तो गोल्ड में तो बेनिफिट है ही, गोल्ड ज्वेलरी में, पर वो किक स्टार्ट हो गया है और वो सेंटिमेंट जो है, और अल्टीमेटली सेंटिमेंट ही इंपॉर्टेंट है, तो उससे डायमंड ज्वेलरी में भी हमको बेनिफिट मिल रहा है। और जो दूसरी बात मैंने एक बार पहले भी बोली थी, ये बाहर वाले जो इंडियन डायस्पोरा है, जैसे एक फैमिली है थाईलैंड में, बैंकॉक में, वो कुछ सालों से अपने गोल्ड ज्वेलरी परचेज के लिए वो लोग दुबई लिटरली ट्रैवल करते थे शादी के टाइम पे। बहुत बड़ी फैमिली है और वो लोग हमारे पास आते थे, डायमंड ज्वेलरी लेते थे, पर हमको बोलते थे गोल्ड ज्वेलरी हम दुबई से खरीदेंगे। अभी लास्ट वीक उनका फोन आया, एक और शादी है एंड दे वांट टू कम टू बॉम्बे। तो वो बेनिफिट जो हमने लूज कर दिया था, वो एडवांटेज हमको दोबारा मिल रहा है। और नॉन रेजिडेंट इंडियंस वांट टू कम बैक टू इंडिया टू बाय, बिकॉज अभी बॉम्बे या दुबई प्राइस में कोई फर्क नहीं है। वैरायटी यहाँ पर मच बेटर है, चीजें ज्यादा अच्छी मिल रही है। और यहाँ पर सब और भी उनकी डिजाइनर क्लोथ्स, डायमंड ज्वेलरी, वो सारा भी डिमांड उनका पूरा हो जाएगा। और इशू जैसे अभी हम नितिन जी कह रहे थे कि बजट के बाद ही 20-25% की तेजी यहाँ पर खरीदारी में देखने को मिली है। आपको भी लगता है वो नंबर्स इतने ही स्ट्रांग हैं, आगे रहेंगे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली रहेंगे। और जैसे नितिन जी ने बताया, शो में इतना बज़ था। मैं पहले दिन गया तो मतलब यू कुड फील इट, वो इट ऑटोमेटिकली, मतलब अगर आपने भी सोचा हो कि मैं 100 की खरीदी करूंगा तो आप 125-150 की कर लोगे। हमारा भी सेंटिमेंट इतना स्ट्रांग हो गया है, बिल्कुल बुलिश हो गया है। आगे जाके आप दोनों से ये भी जानना चाहेंगे कि अब अगर नितिन जी, ये सवाल पहले आपसे है और टू पार्ट है कि अब यहाँ पर कोई चेंज, कुछ रिक्वेस्ट सरकार से अभी भी पेंडिंग है, एक तो ये, और दूसरा अब आपकी क्या सेंस है कि गोल्ड प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं? देखिए, सरकार से दरख्वास्त है कि हमको, जब मैं चेयरमैन था ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का, तो हमको ये बताया गया था कि जीएसटी जो है रेवेन्यू न्यूट्रल रेशियो रहेगा और जीएसटी जो है ये इक्विवेलेंस रेशियो रहेगा। अब भले 3% स्पेशल स्लैब किया सरकार ने, हम धन्यवाद देते, लेकिन हमारा पहले वैट जो था वो 1% ही था, जो भी 3%। अब रेट इतने ज्यादा बढ़ने से वो पर तोला जो है 2 से 2,500 हो जाता है। तो हम आने वाले समय में जब रैशनलाइजेशन की मीटिंग है जीएसटी में, तो हम काउंसिल से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हमारी ड्यूटी जो वैट था उतनी कर दिया जाए, 1% के आसपास में वो कर दिया जाए, वो एक एक्सपेक्टेशंस है। दूसरी हमारी एक्सपेक्टेशंस ये है कि होल मार्किंग जो है वो अभी भी हिंदुस्तान के 30-35% पार्ट में ही है। अभी होलसेलर को बहुत दिक्कत होती है कि जिस पार्ट में होल मार्किंग सेंटर्स नहीं है, वो लोग उनको सप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि उनकी ज्वेलरी हॉलमार्क होती है, और वो लोग ले नहीं सकते क्योंकि उनके एरिया में होल मार्किंग सेंटर्स नहीं है। तो सरकार को एक मीटिंग करके एक फॉर्मूला ढूंढना चाहिए। हमारे पास ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के पास उसके लिए पूरा रोड मैप रेडी है। अगर सरकार हमको बुलाती है तो हम पूरे हिंदुस्तान में होल मार्किंग आने वाले 1 साल में कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है, उसके साथ सरकार के साथ बैठ के पूरे इसके ऊपर विचार विमर्श करके हमारी पूरी सपोर्ट देना चाहेंगे। फेयर पॉइंट। तो ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ किया गया है, कुछ क्लैरिटी और जो प्लग होल्स हैं यहाँ पर भी इनको ठीक किया जाए तो उस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। इशू, आपका क्या सेंस है? क्या कुछ आपको अभी भी लगता है सरकार इस इंडस्ट्री के सपोर्ट में कर सकती है, और आप कैसे देखते हैं आने वाले समय में गोल्ड के प्राइसेस? गोल्ड के प्राइस में तो ये जो जियोपॉलिटिकल इजराइल ईरान का चल रहा है, उसमें तो बुलिशनेस ही है। और अभी लकीली क्लाइंट लोग भी ये बात समझते हैं। तो गोल्ड का एक ये बेनिफिट हमेशा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लोगों को, कंज्यूमर्स को फील होती है। हालांकि जब भाव बढ़ते हैं कोई बेचने नहीं निकलता, पर जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है वो बहुत ही, स्पेशली फॉर द वुमेन फोक, उनको लगता है कि चलो हस्बैंड्स तो बिजनेस कर रहे हैं, उनके शेयर मार्केट में पैसे हैं जो भी है, पर ज्वेलरी के वजह से जो सिक्योरिटी उनको लगती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली आगे बुलिशनेस लग रही है। और जैसे नितिन जी ने बोला, अगर और जीएसटी रैशनलाइज हो जाए
3% से 1% हो जाए तो डेफिनेटली वो सोने पे सुहागा होगा। ऑलराइट, तो सोना तो है ही, उस पे सुहागे की उम्मीद यहाँ पर फिलहाल इंडस्ट्री की तरफ से। बहुत शुक्रिया नितिन जी, इशू आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और वो तमाम चीज़ें जो गोल्ड है उन पर बात भी करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, जब हम लौटेंगे तो बात यहाँ पर डायमंड्स की होगी और लैब ग्रोन डायमंड्स के भावों में कुछ और गिरावट देखने को मिली है। इंडस्ट्री इसे कैसे देखती है, कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदे हैं, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ लाइमलाइट लैब ग्रोन डायमंड्स की MD एंड फाउंडर पूजा शेठ होंगी। हमारे साथ अब लाइमलाइट लैब ग्रोन्स डायमंड की MD एंड फाउंडर पूजा शेठ महाधवन हैं। पूजा नमस्कार, स्वागत है आपका। और जिस तरह से GTRI की रिपोर्ट आई है, थोड़ा सा तो इंडस्ट्री को शेक किया होगा उसने, बिकॉज वाइल ऑफ कोर्स प्राइस डिक्लाइन को तो वो फोकस में है ही, लेकिन काफ़ी सारी जो और दिक्कतें फिलहाल इस सेक्टर के साथ हैं, कैसे देखती हैं आप इस रिपोर्ट को? थैंक यू मनीषा फॉर हैविंग मी। यस, पहले ना एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। सबसे पहले जो प्राइसिंग की बात यहाँ पे हो रही है वो ट्रेडिंग लेवल की प्राइसिंग है, वो रिटेल लेवल की प्राइसिंग की बात नहीं हो रही। आज के टाइम पे ट्रेडिंग लेवल पे हाँ प्राइस घटे हैं, बट सिर्फ लैब ग्रोन डायमंड के प्राइसेस नहीं, नेचुरल डायमंड के प्राइसेस भी 40% डाउन हो चुके हैं। और आपने देखा हाल ही में सुना भी होगा कि काफी सारे बड़े डायमंड मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में उन्होंने उनके कटिंग और पॉलिशिंग यूनिट्स को 10 दिन तक बंद करने का ऐलान किया हुआ है, क्योंकि और ये लार्जली इसका रीजन यही है कि डायमंड्स का सबसे बड़ा मार्केट यूएस है और यूएस में डिमांड ना होने के कारण ये थोड़ी आज प्रॉब्लम्स आ रही है। बट ये प्रॉब्लम सिर्फ लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री को नहीं, नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री को भी है, जहां लैब ग्रोन डायमंड के प्राइसेस 65% ड्रॉप हुए, नेचुरल डायमंड के प्राइसेस भी 40% ड्रॉप हुए हैं। तो ये हुआ ट्रेडिंग का बात। अब आप अगर एग्जीबिशन में आओगे और देखोगे कि कंज्यूमर सेंटिमेंट क्या बोल रहा है या रिटेल लेवल प्राइसिंग क्या कह रही है, तो रिटेल लेवल पे कोई इशू नहीं है। At this point in time also the retail pricing remains consistent for the lab grown diamond industry, and in fact retail is only scaling upwards। आज आप इंडिया में देखोगे तो यूएस में डिमांड पिकअप नहीं है, बट लैब ग्रोन डायमंड की इंडिया में बहुत अच्छे से डिमांड पिकअप हो रही है। एवरीबडी इज गियरिंग अप फॉर द सीजन। 50 से ऊपर रिटेल स्टोर्स आ गए हैं। बड़े बड़े चेन स्टोर लाइक सेंको, उन्होंने भी खुद के लैब ग्रोन ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया हुआ है। हर एक जन स्टोर एक्सपेंशन मोड पे है लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का अब पैसा आने लग गया है लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर में इन इंडिया फॉर द डोमेस्टिक मार्केट। तो शेकअप एक्चुअली हम तो हुए नहीं है, इंडस्ट्री को ऐसा पिक्चर दिया गया है, बट इट इज ऑल ड्रिवन बाय यूएस डिमांड। इंडिया का डिमांड देखो तो बहुत ही बुलिश है। ऑलराइट, तो एज ऑफ नाउ जिस तरह से प्राइस करेक्शन हमने आता हुआ देखा, और पूजा आपने सही कहा, क्योंकि नेचुरल एंड लैब ग्रोन्स दोनों में ही यहाँ पर प्राइस डिक्लाइन अच्छा खासा देखने को मिला है। एंड ऑफ कोर्स दिक्कतें हैं ओवरऑल इंडस्ट्री को यहाँ पर, अब क्योंकि सामने एक फेस्टिवल सीजन है, एंड इवन इफ हमने यहाँ पर ऑन अ फैक्ट्री लेवल यहाँ पर प्राइस डिक्लाइन आता हुआ देखा भी है, कितना पास ऑन हो रहा है रिटेल को आगे? जिस तरह का फेस्टिवल सीजन है, किस तरह की तैयारी है, किस तरह के नंबर्स आप एंटिसिपेट कर रही हैं बिकवाली के लिहाज से? No, definitely. I think in terms of retail level, this only means कि lab grown diamond jewelry और भी affordable हो रही है consumers के लिए, जिसके कारण अब consumers ना केवल सॉलिटेयर, पहले एक दौर था जब लैब ग्रोन डायमंड में सिर्फ सॉलिटेयर के लिए सॉलिटेयर बेस्ड ज्वेलरी के लिए परचेज होता था, बट आज के टाइम पे कंज्यूमर्स अब हर एक कैटेगरी में लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी को एक इन्वेस्टेबल ऑप्शन की तरह देख रही है। हमने देखा है ब्राइडल के लिए बहुत सारा डिमांड इस सीजन में बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, एंड आई बिलीव दैट दिस सेक्टर इज गोइंग टू एक्चुअली ग्रो बाय 40 to 45% दिस ईयर। ओके, 40-45% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पूजा, इतनी सारी कॉन्वर्सेशंस होती हैं लैब ग्रोन्स के लिहाज से इन द मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी यहाँ पर अडॉप्टेबिलिटी भी है, दूसरी तरफ एक सेपरेट स्टोरी भी यहाँ पर चलते रहती है एट ऑल टाइम्स। आप क्या एडवाइस करेंगे यहाँ पर बायर्स को जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं परहैप्स और लैब ग्रोन्स की तरफ देख रहे हैं, एस्पिरेशंस हैं वहाँ?
So I think maybe as a young millennial consumer also, मुझे लगता है lab grown diamond is most definitely a smarter choice, क्योंकि यहाँ पे आपको same budget में या तो आपको बड़े साइज के डायमंड्स मिल सकते हैं या तो आपको ज्यादा पीसेस ऑफ ज्वेलरी मिल सकती है, राइट। सो 5 लाख में आप 1 कैरेट के रिंग के साथ साथ आप इयररिंग, पेंडेंट, ब्रेसलेट सब चीजें ले सकते हो। सो लैब ग्रोन डायमंड ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज बढ़ा देती है, कितने ज्वेलरी आइटम्स आप ले सकते हो। दूसरा है कि जो हमेशा कंज्यूमर के माइंडसेट में कंफर्ट होता है बायबैक और रीसेल एंड एक्सचेंज फैसिलिटीज का, आज के टाइम पे लैब ग्रोन की हर रिटेल ब्रांड इंडिया में ये सब फैसिलिटीज ऑफर कर रही है, जिससे कंज्यूमर को बहुत कंफर्ट मिल रहा है कि बायबैक एक्सचेंज भी है ये कैटेगरी में, तो हम इसको एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह भी दे सकते हैं। दूसरा है कि यहाँ पे ऑब्वियसली प्राइस सेविंग्स काफी ज्यादा है, तो जो भी बचत होती है आज का कंज्यूमर बोल रहा है कि वो बचत हम इफेक्टिवली म्यूचुअल फंड्स और SIPs में डाल के उसके रिटर्न से और डायमंड्स खरीद सकते हैं। सो आई थिंक कंज्यूमर स्मार्ट बन रहा है, कंज्यूमर्स के पास ऑप्शंस बढ़ रहे हैं और लैब ग्रोन डायमंड से डिजाइन स्कोप एंड कैपेबिलिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पूजा, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। वेल एब्सोल्युटली, वो जो आपने तरीका बना के दिया है कि कैसे खरीदें, कितना पैसा बचा सकते हैं, कैसे FD में गेन कर सकते हैं, वो क्लियरली एक पोर्टफोलियो मेकिंग जैसी राय थी। बट बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और ऑफ कोर्स उस इंडस्ट्री को आप बहुत बेहतरीन समझती हैं तो हमें भी समझाने के लिए। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।